दैट इज अबाउट रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। लेकिन कल के सेशन में एक टॉपिक रहता था, कल के सेशन में हमने टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया फ्रॉम मॉड्यूल सी। वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने छुड़वाया कल के सेशन में, वो पहले कवर करते हैं, उसके बाद मूव ऑन करेंगे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज रिलेटिंग विद द रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। तो इट्स अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, है ना। So here it is. So wealth management solutions are mostly modular, fully scalable, integrated core banking and investment management system designed for specific needs of retail and private banks. They offer unique combination of extensive portfolio of a function with impressive flexibility that enable end-to-end processing of investment product from diverse assets classes including structured deposit, structured note, equities, mutual fund एंड इंश्योरेंस। मतलब प्रॉपर किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के रिलेशन में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन लेवरेज द सोल्यूशन rule based definition to launch new product such as dual currency deposit, principal protected deposit, range accrual deposits, mutual funds, insurance product with a distinct time to market advantage. Integrated with the core banking and customer relationship management solution, the wealth management solution ensure unique customer definition, a single unified view of customers' portfolio across asset classes and seamless flow of transaction. क्या क्या की मॉड्यूल हैं जो हमने डिस्कस किए? स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज एंड इंश्योरेंस। बिजनेस बेनिफिट की अगर बात की जाए, पिनेकल वेल्थ मैनेजमेंट सोल्यूशन एग्जांपल बताइए यहाँ पे एक, अनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ड्राइव रिच इंटीग्रेटेड इनसाइट्स अबाउट हाई नेटवर्थ क्लाइंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, sophisticated analytics, relevant financial planning, asset allocation tools can be deployed to leverage the opportunities presented by hot-listed client to explore prospectus for cross-selling, upselling, fee-based, personalized, advised, etc. Next, it will help or it will ease in enhancing the product portfolio, wealth management. The user-friendly solution provide flexibility to tailor solution and create new product flavor for emerging customer segment. It enable business user at the bank to add innovative functionalities and features to their offerings without changing the source code of the application. The solution also interfaces seamlessly with the satellite and specialized system. मतलब core banking solution जैसे अकॉर्डिंग टू ईज एंड रिक्वायरमेंट कस्टमर को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, जो भी मीन्स आपने यूज करना है। सैटेलाइट के हेल्प के साथ स्पेशलाइज्ड सिस्टम इजीली सपोर्टिंग फास्टर रोल आउट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एट द बैंक। देन हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द सोल्यूशन एनेबल स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग एंड एसटीपी and are fortified with a powerful integration framework to interface with the bank's core banking solution, seamless transaction flow at the bank. Every financial operation is processed identically. Execution either ensure a successful update of all related data or a complete rollback in case of technical problems. Consistency and reliability are guaranteed under the system. Fully integrated and component based, the solution also ensure consistency of data. Access rights are rigorously managed. Every transaction request is checked. Systematic records are maintained as audit trail, ensuring robust security. The solution allow users belonging to different legal entities to work on a single system and database. This directly result in a significantly lower implementation cost and ease of centralized reporting for the bank. जिसने भी data assess करना होगा, that will be easier for that person. Then lower total cost of ownership. Built on new generation technology, wealth management solutions are generally future proof and can be seamlessly integrated with other enterprise applications. With proven scalability and a flexibility architecture, they ensure protection for banks' technology investment.
The points discussed in foregoing are only illustrative to highlight the application and feature of technology in retail banking provided by one software company. There are different effective solution provided by different software vendors. आप अपनी ease के according choose करते हो, select करते हो. These feature along with good CRM, customer relationship management solution will enable the bank to cross sell effectively and achieve total customer satisfaction. For some of the features given है with the help of this pictorial diagram. I hope so the thing is clear to you. So it's about banks internet. मतलब visible नहीं होएगा मुझे लगता है कि है ना, वर्ड्स थोड़े से. इट्स यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक्स इंटरनेट या इंट्रानेट, जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो. एक साइड है आपका कस्टमर एंड प्रोस्पेक्टस, सेकेंड वन इज बैंक्स स्टाफ. कस्टमर एंड प्रोस्पेक्टस यू विल बी एबल टू हैंडल विद द हेल्प ऑफ ब्रांच, विद द हेल्प ऑफ ATM सेंटर्स. होम लोन फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हो, इन स्टोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो. बैंक स्टाफ की अगर मैं बात करूं, ऑन दी अदर हैंड रिलेशनशिप मैनेजर्स विल बी देयर, सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है, डाउट्स हैं उसके रिलेशन में. प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स विल बी देयर, सेल्स स्टाफ विल बी देयर. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बैंक्स इंटरनेट या इंट्रानेट जो काम है या इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, बेसिकली जो दोनों को एक साथ लेके चलता है. किन दो चीजों को, कस्टमर इंटरफेस ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सेकेंड वन इज बैंक्स स्टाफ यूजिंग एडवाइजर इंटरफेस. ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलता है. इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड वे में आप यहाँ पे चीजें डील करते हो. ठीक है, with the help of banks intranet and internet. Okay, so this is about wealth management. थोड़ा सा conceptual part था. एक टॉपिक रहता था आपका टेक्नोलॉजी वाला जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे इन रिलेशन टू दैट. अभी स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट क्वेश्चन हमने कल के सेशन में डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, ओके. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट रिकवरी ऑफ रिटेल लोन. तो आपको पता है बैंक्स जो हैं लैंड करते हैं, है ना, जो भी डिपॉजिट्स रहता है जनरल पब्लिक का, उसको लैंडिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड वो बैंक का अपना पैसा तो है नहीं, डेफिनेटली डिपॉजिटर्स का पैसा है, उसको रिकवर भी करना है. ठीक है, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो द सक्सेस ऑफ एनी बैंकिंग इनिशिएटिव इज जज्ड ओनली बाय द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम दैट बिजनेस सेगमेंट. किस तरीके से आप, जब आपको जो आपने लोन प्रोवाइड किया या एडवांस जो भी आपने दिया है, अगर आप टाइमली उसको रिकवर कर पा रहे हो, यू विल बी इन गुड पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन में तभी होगे. जब नहीं कर पा रहे, NPA हो ही जा रहा है, तो वो सिचुएशन हार्मफुल है. बैंक एग्रेसिवली बिल्ड अप देयर रिटेल एसेट पोर्टफोलियो टू एक्सपैंड बिजनेस, एज रिटेल एसेट्स आर वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर इन बैंकिंग. क्यों रिटेल एसेट्स के ऊपर क्यों फोकस करोगे? क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाओगे. ठीक है, कोई यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं रहेगा कि आपने सारा का सारा लोन एक ही पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड किया है. दैट्स वाई कि यहाँ पे की फोकस किया जाता है रिटेल एसेट्स के ऊपर इन रिटेल बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाओगे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में. ठीक है, कि अगर एक पर्सन ने डिफॉल्ट किया भी, बाकी आपको टाइमली पे कर देंगे. ठीक है, मोर ओवर सिंस द कस्टमर बेस इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर, the risk in retail asset financing is well diversified. Bank take advantage of this phenomena and expand exponentially their retail asset portfolio. तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी. Large consumer base will be there, heterogeneous nature of customer will be there, income slab, preference, need, requirement सबका अलग अलग रहेगा. तो आप यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाई कर पाओगे विद द हेल्प अंडर रिटेल बैंकिंग. ठीक है, रिटेल एसेट्स. दैट्स वाई की फोकस किया जाता है इसको. Apart from foreign bank, new generation private sector bank aggressively expand their retail asset portfolio in the past decade to the extent that the retail asset portfolio of one of the top private sector bank exceed above 50% of their total asset portfolio. जितना भी उनका asset portfolio है, उसका more than 50% तो retail sector में ही जाता है. Why? Reason for that, risk diversification. ठीक है, Public sector bank are also expand their retail asset portfolio in a big way, but not to the extent of a private sector bank. Their retail portfolio size on an average based to be range of 30%, जबकि private sector का nearby 50. ठीक है, Accordingly, profit generated from that segment are also attractive, but the inherent risk of default is always there in retail asset also.
डाइवर्सिफाई कर सकते हो रिस्क, मिटिगेट कर सकते हो रिस्क, या एलिमिनेट कर सकते हो? इट्स आंसर इज नो। चांसेस ऑफ डिफॉल्ट विल बी देयर, चाहे मैं रिटेल लोन की बात करूं, ठीक है, रिटेल एसेट्स की बात करूं, आपने कॉर्पोरेट को लोन दिया है, किसी भी सेक्टर में दिया है, चांसेस ऑफ डिफॉल्ट विल बी देयर, ठीक है। द अनसिक्योर नेचर ऑफ रिटेल एसेट्स लाइक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये केस में तो आपको पता है देखने को मिलता है। डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन, तो डिफॉल्ट्स बेसिकली क्या है, सबसे पहले उसका मीनिंग जानेंगे, रीशेड्यूलिंग बेसिकली क्या है उसका मीनिंग जानेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज डिफॉल्ट, पहला क्वेश्चन तो यही। डिफॉल्ट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट विच हैपन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड इंस्टॉलमेंट, आप ड्यू टू एनी रीजन आप पेमेंट नहीं कर पाए, जो आपका डेट बनता था, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट। इफ द रीपेमेंट शेड्यूल इज नॉट एडहेयर टू एज पर द कमिटमेंट मेड, देन इट ट्रांसलेट इनटू डिफॉल्ट। जैसा आपने बोला था कि टाइमली इसके अकॉर्डिंग मैं पे करूंगा, आपने वो चीज नहीं कर पा रहे, ठीक है, अपनी कमिटमेंट के साथ रिलाई नहीं कर पा रहे, तो वो कहलाएगा डिफॉल्ट। द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफॉल्ट ग्रेड इट अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम अ सिंपल ओवरड्यू टू अ स्टेज ऑफ एनपीए। मतलब सबसे पहले मतलब सीधा ही एनपीए नहीं होता, ठीक है, एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, सीधा ही एनपीए नहीं होता, सबसे पहले ओवरड्यू रहती है आपकी अमाउंट, अकॉर्डिंग टू अ टाइम क्राइटेरिया विल बी देयर, 90 डेज ओवरड्यू आई गेस फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ एनपीए, कि सबसे पहले आपके जो अकाउंट है अगर 30 डेज तक स्ट्रेसफुल साइन शो कर रहा है तो उसको SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, फर्दर कैटेगराइजेशन आफ्टर बिकमिंग एनपीए, इस तरीके से फर्दर कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है। 90 डेज के बाद जो आपका वो एसेट है उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है, अगर तब भी ओवरड्यू है, उससे पहले जो है दैट कैन बी क्लासिफाइड अंडर SMA 0, 1, 2, ठीक है। देन व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉल्ट इन रिटेल लोन, क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ होम लोन, ठीक है, वैसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। टेक द केस ऑफ होम लोन, होम लोन आर ऑफर इन 2 प्राइस फॉर्मेट, वन इज फिक्स प्राइसिंग एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल प्राइसिंग। सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल ली है, ठीक है, सिर्फ रैंडम एग्जाम्पल ली है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक एक्सप्लेन किया मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, ठीक है। वन इज फिक्स प्राइसिंग एंड सेकेंड इज वेरिएबल प्राइसिंग, और यू कैन से फ्लोटिंग प्राइसिंग। फिक्स आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहना है, वेरिएबल की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। द अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन इज दैट even fixed pricing takes a character of a floating pricing as interest is reset as per the reset clause agreed between the lender and borrower. If reset clause जब आप enter किए थे contract में, reset clause will be there, you will be able to convert your fix into fix जो rate of interest है into variable rate of interest या floating rate of interest. The monthly installment are also called EMIs, are fixed based on the rate prevailing at the time of availing the loan and the agreed repayment period based on servicing capacity of the borrower. Steep change in interest rate say 200 to 300 basis point, इतने यही फॉर्मेट रहता है ना आपका, जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है कि 100 बेसिस पॉइंट से, 200 बेसिस पॉइंट से, 300 बेसिस पॉइंट से, है ना, लेट्स से कि जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 200 टू 300 बेसिस पॉइंट, विल चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कम या ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ईदर फिक्स और फ्लोटिंग विल इंक्रीज द EMI and hence customer has to pay more than that was originally committed based on his repaying capacity. Since there are chances that customer would not be able to servicing the higher EMI, the loan repayment will be under default, ठीक है। Due to this reason जब कस्टमर पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपनी जो भी उसकी कमिटमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो आप उसको बोल सकते हो डिफॉल्ट। If the loan installment are now service for 3 months, then a loan become NPA. मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, 30 डेज वाला क्राइटेरिया, 30, 60, 90 डेज ओवरड्यू आपका NPA कहलाएगा, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के ऊपर यहाँ पे एक्शन लिए जाते हैं बैंक की तरफ से, कई बार ये एवरग्रीन अकाउंट भी शो करते हैं, ठीक है, सो दैट की प्रोविजनिंग से बचा जा सके।
The reasons for the increase in interest rate may be due to genuine, अभी ये interest rate increase ही क्यों हुआ, हो सकता है genuine reasons हों. For example, macroeconomic factor और asset liability management of the bank. मतलब जो इकोनॉमी में जो चीज़ें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर जैसे भी पैंडेमिक था, ड्यू टू दैट, है ना, ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं मैक्रो लेवल के ऊपर, जेन्युइन रीजंस जिनकी वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज किया गया. ठीक है, तो इनकी वजह से इंटरेस्ट रेट में आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जो ईएमआई का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है एंड चांसेस ऑफ डिफॉल्ट विल बी देयर. देयर आर टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन. अगर ऐसी वाली सिचुएशन है, डिफॉल्ट वाली सिचुएशन है, तो बेसिकली आपको इसके दो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, दो चीजें देखने को मिलेंगी. क्या? टू पे द हायर ईएमआई सो दैट रीपेमेंट पीरियड इज कैप्ट एट द सेम लेवल. आपने 3 साल में पे करना था, ईएमआई ज्यादा होगी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही पे कर दो, सो दैट कि जितना रीपेमेंट टाइम पीरियड आपको मिला आप उसके अंदर अंदर रीपे कर दो. सेकेंड क्या आउटकम निकल के आएगा ये सिचुएशन का? to pay reduce EMI and to become longer the repayment period beyond the earlier committed repayment period, but within the total repayment period permissible for housing loan or extend even beyond that period. तो पहला ऑप्शन यहाँ हायर EMI पे कर दो, विद इन मान लो 3 साल का आपका लोन था, 3 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे, या फिर रिड्यूस EMI पे कर दो, जो आपका 3 साल में पे करना था हो सकता है अभी वो 4 ईयर में पे करना पड़े. तो डेफिनेटली जब आपका रीपेमेंट पीरियड एक्सीड होएगा, आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी तो पे करनी है ना, वो केस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट फिर और पे करनी पड़ेगी 1 साल ज्यादा. कहाँ 3 साल तक ही पे करनी थी, कहाँ 1 साल और ज्यादा पे करोगे अगर ईएमआई को रिड्यूस करोगे. तो दो आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं डिफॉल्ट वाली सिचुएशन के. दोनों आउटकम्स को ध्यान में रखिएगा. Some customer may be willing to pay the higher EMI and keep the repayment period at same level, but most of the customer may not afford to pay the increase EMI as the same level will be substantial. This will result in the loan becoming overdue and subsequently NPA की तरफ क्या है, move on होता है. The other option is to pay the same EMI for an elongated repayment period and service the loan accordingly so that asset continue to remain as performing one. Instead of कि आप NPA उसको डिक्लेयर करो, इस तरीके से आप कम अमाउंट पे कर दो, लंबे समय तक ले जाओ. ठीक है, दैट वुड बी बेटर. मोस्ट ऑफ द बैंक हैड एलोंगेटेड द रीपेमेंट पीरियड, मतलब इंक्रीज कर देते हैं रीपेमेंट पीरियड, सो दैट कस्टमर आर नॉट अंडर एक्स्ट्रा प्रेशर टू सर्विस द लोन. क्या मेरे को ज्यादा EMI पे करनी है, ये प्रेशर वाली सिचुएशन ना हो. Some private bank gave the option to the borrower to pay higher EMI और pay the same EMI under extended repayment period. यही फिनोमिना क्या कहलाता है? रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन. आपने दोबारा से जो आपने पहले शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि आप हमने इतने टाइम पीरियड के अंदर या इतनी अमाउंट हमने पे करनी है, अकॉर्डिंगली आपने पे करना था, अभी उसमें चेंजेस कर रहे हो ना आप, या तो EMI की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हो या फिर अपना जो रीपेमेंट पीरियड है उसको इंक्रीज कर रहे हो. तो इसी को क्या बोलते हैं? रीशेड्यूलिंग ऑफ रिटेल लोन. तो आई होप सो आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, व्हाट इज डिफॉल्ट एंड व्हाट इज रीशेड्यूलिंग. इसी के साथ हमने टॉपिक स्टार्ट किया था. ठीक है, तो डिफॉल्ट हैपन मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन इन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन सेगमेंट ऑल्सो where the interest rates are quite high and unsecure in nature. तो हमने देखा था ना कि डिफॉल्ट चांसेस ऑफ डिफॉल्ट विल बी देयर इन रिटेल लोन एंड मोस्ट ऑफ द केसेस कौन से रहते हैं? आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, क्योंकि अनसिक्योर रहता है ये. ठीक है, तो क्या क्या रीजंस रहते हैं डिफॉल्ट के? जेन्युइन डिफॉल्ट भी हो सकता है कि आपके हाथ में नहीं है चीज, नहीं पे कर पाए. ठीक है, जेन्युइन रीजन है उसके लिए. कुछ विलफुल डिफॉल्टर भी होते हैं. ठीक है, आपको पता ही है. ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट बड़ी लंबी है. तो जेन्युइन डिफॉल्ट ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड द बोरोर्स कंट्रोल, जैसे भी पेंडेमिक था. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में आपको जो है आपको डिक्लाइन देखने को मिला, है ना, एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको ही फुलफिल किया जा रहा था, तो लोन की अमाउंट तो कैसे ही कहाँ ही पे करनी थी, है ना. तो वो केस में अगर डिफॉल्ट हुआ तो उस तरीके के डिफॉल्ट को आप जेन्युइन डिफॉल्ट बोल सकते हो. ठीक है, एंड विलफुल डिफॉल्ट कि आपके पास पैसा होने के बावजूद आप पे कर सकते हो, इन स्पाइट ऑफ दैट आप मीट ऑफ नहीं कर रहे अपनी लाइबिलिटी को, अपने डेट को, तो वो कहलाएंगे विलफुल डिफॉल्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेन्युइन डिफॉल्ट. इन जेन्युइन डिफॉल्ट द कस्टमर फेल टू रीपे द EMI ड्यू टू पर्सनल सेटबैक
job losses, unforeseen medical expenses, etc. that tilt the balance of their monthly payout and result in a non-payment of bank dues. तो ये genuine reasons हो सकते हैं. Here the intention to pay is intact but the ability to pay is affected and result in default. आप चाहते हो कि मैंने पे करना है, इंटेंशन है आपकी पे करने की, लेकिन ability नहीं है कि आप पे कर पाओ. ठीक है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है. ओके, विलफुल डिफॉल्ट में तो इंटेंशन ही नहीं होती कि हमने तो पे करना ही नहीं, जो मर्जी कर लो. द अप्रोच ऑफ द बैंक फॉर रिकवरी विल बी वन ऑफ द केयर एंड कंसर्न and will be a customer oriented approach because the chances of recovery are bright. The next is willful default. In willful default, customer deliberately failed to pay the EMI and attitude is negative. The intention of the borrower are mollified and there is no attempt from the borrower's side to service the loan as per the committed repayments. The objective is to delay the EMI and put the bank into difficulties. In spite of you having the capability, आपके पास ability है कि आप debt pay करो, आप intentionally pay नहीं कर रहे, तो आप कहलाओगे willful defaulter. ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में एक नाम आ जाता है सबसे पहले ही जब भी मैं willful default की बात करती हूँ, एंड आई होप सो आपके दिमाग में भी आता होगा. ठीक है, सो मतलब पूरा पिक्चर आ जाती है सामने. In willful default, the approach of the bank will be on a recovery basis as the chances of recovery are not so bright. वहाँ पे अगर मैं genuine default की अगर मैं बात करूँ, चांसेस ऑफ रिकवरी विल बी देयर. ठीक है, कि आप फॉर द टाइमिंग आप पे नहीं कर पा रहे ड्यू टू दैट रीजन, लेकिन आप पे कर दोगे. यहाँ पे तो बंदे ने पे करना ही नहीं, जब है तब नहीं पे कर रहा तो बाद में तो क्या ही करेगा. सो बैंक टेक ए सिस्टमेटिक एंड फर्म अप्रोच फॉर रिकवरी ऑफ दीज लोन्स. द रिकवरी प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय बैंक फॉर रिकवरी ऑफ रिटेल लोन इन डिटेल, अभी वो डिस्कस करेंगे. क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बैंक की तरफ से टू रिकवर देयर रिटेल लोन, इसी के ऊपर था आज का सेशन. ठीक है, so as you seen in the chat box, if you want to enroll yourself for crash courses with the help of link you can. ठीक है, with the help of link you can, exciting offer के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, एक बार लिंक ओपन करके जरूर देखिए. you will be able to cover the syllabus within a limited period of time with the help of our crash courses. तो एक बार जरूर विजिट जरूर कीजिएगा with the help of the link. ठीक है, जो अभी शेयर किया गया है. तो रिकवरी प्रोसीजर के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले रिकवरी प्रोसेस. ठीक है, क्या फॉलो किया जाएगा बैंक की तरफ से. रिकवरी प्रोसेस इज अ साइंटिफिक एज वेल एज इसेंशियल टूल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ रिटेल एसेट. एज डिस्कस्ड अबव, इट हैज टू बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट एड्रेस बोथ जेन्युइन डिफॉल्टर एज वेल एज विलफुल डिफॉल्टर. मतलब अल्टीमेट तो बैंक ने रिकवर करना है ना अपना जो डेट है, चाहे जेन्युइन डिफॉल्ट है चाहे विलफुल डिफॉल्ट है. तो जो भी रिकवरी प्रोसेस रहेगा वो इस तरीके से डिजाइन करना है सो दैट दे विल बी एबल टू रिकवर द डेट. ठीक है, while genuine defaulter are to be handled very sensitively as they are otherwise good customer and a default has happened due to circumstances beyond their control. उनकी इंटेंशन तो है ना कि उन्होंने पे करना है. ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उनको ड्यू केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा. The recovery process has to be gentle and professional and ultimately it should translate into recovery of money. Definitely you will be able to recover your debt. In case of willful default, the recovery process should be strict. ठीक है, होना भी चाहिए. And at the same time very professional as lot of pressure has to put for recovering the money. Bank are advising their recovery policies in their website and also inform the borrower customer about the recovery procedures adopted by them. The recovery process adopted by a new generation private sector bank is discussed below to understand the entire complete range of recovery in retail banking. तो क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले रिकवरी पॉलिसी. ठीक है, the recovery policy clauses are clearly spell out इन रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक, कि किस तरीके से आपने रिकवर करना है. ये सारी चीजें आपको रिकवरी पॉलिसी में देखने को मिलेंगी.
The fundamental assumption and approach to recovery are clearly communicated to the customer. Different clauses of the recovery policy. सबसे पहले preamble. हाँ, प्रियम्बल जब भी वर्ड आप सुनते हो, आई होप सो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखा होगा कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले प्रियम्बल रहता है. प्रियम्बल बेसिकली क्या आइडिया देता है कि मतलब वो इतनी सारी जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इतने आर्टिकल्स हैं, उसका क्रक्स है प्रियम्बल में. ठीक है, यू विल गेट टू नो एन आइडिया कि क्या ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करने का विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल. Same in case of recovery policy. With the help of a preamble, you will get to know an idea, crux of the recovery policy of the bank. You will get to know with the help of a preamble. Okay. So the debt collection policy of the bank is built around dignity and respect to customer. Bank will not follow policies that are unduly coercive in collection of dues. मतलब threaten करके ऐसे करके नहीं होनी चाहिए आपकी policies to recover the debt. The policy is built on courtesy, fair treatment and persuasion. Bank believe in following fair practice with regard to collection of due and repossession of security if required to recover your debt, and thereby fostering customer confidence and long-term relationship you will be able to establish with the customer. The repayment schedule for any loan sanctioned by bank will be fixed, taking into account paying capacity and cash flow pattern of the borrower. मान लो अगर सीजनल इनकम होनी है किसी बोरर को, डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग फिर उनका रीपेमेंट जो पैटर्न रहेगा या स्केड्यूल है वो सेट करोगे. जो रूटीन नेचर में उनका जो फंड फ्लो है, ठीक है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम विल बी देयर, तो आप अकॉर्डिंगली स्केड्यूल सेट करोगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर आप यहाँ पे स्केड्यूल प्रॉपर पैटर्न या रीस्केड्यूल करोगे, रीपेमेंट स्केड्यूल सेट करोगे. बैंक विल एक्सप्लेन टू द कस्टमर अपफ्रंट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और पेमेंट थ्रू एनी अदर मोड ऑफ रीपेमेंट विल बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ड्यू फ्रॉम द कस्टमर. क्या मेथड यूज कर रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग EMI, आपने फैमिलियर करवाना है कस्टमर को विद दैट. द बैंक वुड एक्सपेक्ट द कस्टमर टू एडहियर टू रीपेमेंट शेड्यूल एग्रीड टू. पॉलिसी रिकॉग्नाइज फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रीपोजेशन, वैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी. ऑल द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय बैंक फॉर फॉलो अप एंड रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी विल बी इन कंसोनेंस विद द लॉ. लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना आपने, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही सारी चीजें करनी है. जो भी आपने फॉलो अप प्रोसीजर फॉलो करना है, रिकवरी प्रोसेस जो भी फॉलो करना है, रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी अगर करनी है, प्रॉपर पैटर्न के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉ. देन जनरल गाइडलाइंस क्या है जो फॉलो करनी है इन केस ऑफ रिकवरी. All the member of the staff or any person authorized to represent the bank in collection or and security repossession would follow the guidelines set below. क्या क्या guidelines follow करनी है? Customer would be contacted ordinarily at the place of his or her choice, and in the absence of any specified place, at the place of his or her residence. And if unavailable at his or her residence at the place of business or occupation. आपने पहले अप्रोच करना है, डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करना है कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर ईज. आइडेंटिफाई एंड अथॉरिटी ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट द बैंक फॉर फॉलो अप एंड रिकवरी ऑफ ड्यू वुड बी मेड नोन टू द बोरर एट द फर्स्ट इंस्टेंस. Bank staff or any person authorized to represent the bank in collection of dues or and security repossession will identify himself or herself and display the authority letter issued by bank upon request. तो जो पर्सन भी यहाँ पे रिकवरी के लिए गए हैं, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर अपना जो भी मत कि उनके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है, लेटर अगर रिक्वेस्ट करे बोरर तो वो केस में उनको शो करना है कि मेरे पास ये अथॉरिटी है इन रिलेशन टू रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम यू. ठीक है, देन बैंक वुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ इट्स बोरर. डेफिनेटली ये की कंसर्न एरिया है. बैंक इज कमिटेड टू इंश्योर दैट ऑल रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन विद इट्स बोरर विल बी सिंपल बिजनेस लैंग्वेज and bank will adopt a civil manner for interaction with the borrower. मतलब
आपने क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स ये चीज़ें करनी है, ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन जो रहेगा कस्टमर के साथ उसको मतलब वो चीज़ प्रॉपर इंश्योर करनी है। बोरर्स request to avoid call at particular time or at a particular place would be honor as far as possible. If it is possible for you then definitely आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। Bank will document the effort made for the recovery of dues and the copy of communication sent to customers if any will be kept on record. Proper record maintain करके रखना है. All assistance will be given to resolve dispute or differences regarding dues in a mutually acceptable and in orderly manner. मतलब कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना, अपना भी बताना, ठीक है, म्यूचुअली यहाँ पे चीजें रहेंगी. देन गिविंग नोटिस टू बोरर. नेक्स्ट चीज क्या रहेगी? While written communication, telephonic reminder or visits by the bank's representative to the borrower's place or residence will be used as a loan follow-up measure. Bank will not initiate any legal or other recovery measure, including repossession of the security without giving due notice in writing. सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा बोरर को अगर इस तरीके की कोई चीज करनी है, रिपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी करना है, ठीक है, या क्या मीन्स वो ऑप्ट कर रहे हैं अपना डेट रिकवर करने के लिए, ये सारी चीजें करने के बाद इसके बारे में पहले बोरर को इन राइटिंग नोटिस इशू करना है, ठीक है. बैंक विल फॉलो ऑल सच प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ फॉर रिकवरी एंड रिपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी. ये तो हमने पहले डिस्कस किया कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लॉ क्राइटेरिया नहीं जाना, ठीक है. देन रिपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी. इफ इट सीम्स टू बी फिट फॉर द बैंक की डेट रिकवर करने के लिए मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है. दैट इज बेसिकली नोन एज रिपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी. पोजेशन लेनी सिक्योरिटी की जो एज अ कोलेटर रखी गई, ठीक है, फॉर टेकिंग द लोन. Repossession of security is aim at recovery of due and not to deprive the borrower of the property. मतलब मान लो जो भी उन्होंने एज अ सिक्योरिटी रखा था, आप रिपोजेशन जो है ले रहे हो वो सिक्योरिटी की. द पर्पज इज व्हाट? द पर्पज इज टू रिकवर द डेट. आपका ये पर्पज नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी ले लेनी है बोरर से, ठीक है, उसके राइट को खत्म कर देना है वो प्रॉपर्टी के ऊपर. आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने रिपोजेशन ली सिक्योरिटी की, बोरर के मन में फेयर होएगा, ही विल बी जैसे भी करेगा, ठीक है, आपके डेट को पे करेगा, आपने प्रॉपर्टी कर देनी है ट्रांसफर, ठीक है. नहीं होएगा देन डेफिनेटली फिर आप नेक्स्ट सेल करोगे, ठीक है, या जो भी आपको मींस सुटेबल लगेंगे अकॉर्डिंगली आपने तो अपना डेट रिकवर करना ही है, ठीक है. द रिकवरी प्रोसेस थ्रू रिपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी विल इन्वॉल्व रिपोजेशन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रू एप्रोप्रिएट मीन्स. All these would be carried out in a fair and transparent manner. Repossession will be done only after issuing notice as detailed above. बताया ना ऊपर की सबसे पहले नोटिस इशू करना पड़ेगा रिपोजेशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है. All these would be carried out in a fair and transparent manner. Repossession will be done only after issuing the notice as detailed above. Due process of law will be followed while taking repossession of property. Bank will take all reasonable care for ensuring the safety and security of property आफ्टर टेकिंग कस्टडी. आपने अपनी रिपोजेशन जो है सिक्योरिटी की क्रिएट की, अपनी कस्टडी के अंदर ली है अगर कोई चीज़, देन डेफिनेटली उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी केयर का काम आपका है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है. देन नेक्स्ट इज वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी. अभी तक क्या डिस्कस किया हमने? जर्नल गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी है, नोटिस देना है रिपोजेशन क्रिएट करने के लिए, फिर उसके बाद रिपोजेशन आप क्रिएट करोगे, ठीक है, अपनी कस्टडी के अंदर ले सकते हो वो सिक्योरिटी को. देन नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी. अगर आपका डेट रिकवर नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेज फिर ये रहेगी. वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी repossessed by bank will be carried out as per law and in a fair and in transparent manner. Bank will then have right to recover from borrower the balance due if any after sale of property.
मान लो जो आपने जिस प्रॉपर्टी के ऊपर रीपोजेशन क्रिएट की, सेल करने के बाद भी आप अपना डेट फुली रिकवर नहीं कर पाए, तो जो बैलेंस रह जाएगा उसमें डेफिनेटली वो पे करना है फिर बोरर ने। बैंक शेल हैव द राइट ऑफ सेट ऑफ एंड लियन। आपको पता है ना कि राइट ऑफ सेट ऑफ जो है बेसिकली बैंक जो है ये इम्पोज कर सकते हैं। लियन विल बी देयर, अपना जो पोजेशन है सिक्योरिटी के ऊपर वो क्रिएट कर सकते हैं बैंक, जब तक डेट पे ना ना करेगा कस्टमर, वो केस के रिलेशन में लियन कैन बी क्रिएटेड। टाइप ऑफ चार्ज है, वन ऑफ द टाइप ऑफ चार्ज है दैट इज क्रिएटेड बाय बैंक, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर लियन और चार्ज present as well future all account deposit of the deposit holder with the bank, whether in simple name or joint name, to the extent of all outstanding dues to the bank. Then for such purpose, bank may at its sole discretion close the deposit prematurely and apply a penal rate of interest in respect of the same. The lien shall be valid and binding on the borrower and operative until repayment in full all money due to bank for the borrower. Lien is basically what? It's a right of creditor. यहाँ मैं बोलूँ it's a right of bank. ये basically क्या right है क्या कि जो बैंक हैं, यहाँ जो creditor हैं वो अब पोजेशन क्रिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी के ऊपर जब तक उनको डेट जो है पे नहीं करेगा बोरर, ठीक है। जिस अगर बोरर ने लोन लिया है, जब तक वो अपना लोन पे नहीं करेगा, पोजेशन कैन बी क्रिएटेड बाय द बैंक अंडर टाइप ऑफ चार्ज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ लियन, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन है IES सेक्शन 170 171 दैट इज अबाउट लियन, पर्टिकुलर लियन, जर्नल लियन, ठीक है। इन डिटेल चला जाएगा फिर ये बहुत कॉन्सेप्ट। देन एक्सेस अमाउंट इफ एनी ऑब्टेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी will be returned to the borrower after meeting all the related expenses provided the bank is not having any other claim against the customer. अगर सेल करने पे एक्सेस अमाउंट रियलाइज हुए, जितना आपका डेट था आपने रिकवर कर लिया, जो आपके एक्सपेंसेस थे, डैमेजेस थे, रिकवर कर लिए, और कोई अमाउंट ड्यू नहीं है फ्रॉम द कस्टमर टूवर्ड्स द बैंक, तो जो एक्सेस अमाउंट होएगी वो आप वापस कर दोगे कस्टमर को, ठीक है। दैट यू हैव रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। देन अपॉर्चुनिटी फॉर द बोरर टू टेक बैक द सिक्योरिटी। आपने रीपोजेशन क्रिएट की, आपने साथ ही उसको जो है सेल नहीं कर देना। डेफिनेटली एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है बोरर को कि वो वापस ले पाए अपनी सिक्योरिटी जो उन्होंने रखी थी लोन लेने के लिए। एज इंडिकेटेड अर्लियर इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बैंक विल रिजॉर्ट टू रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी। हमने पहले ही डिस्कस किया कि उनका पर्पज ये नहीं है कि उन्होंने बोरर का राइट डिप्रीव करना है फॉर देयर प्रॉपर्टी। उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है दे हैव टू रिकवर देयर डेट, दैट्स इट, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर उन्होंने अपॉर्चुनिटी देनी है बोरर को कि अपना सिक्योरिटी वो वापस ले सकते हो आफ्टर पेइंग द डेट, अपनी लाइबिलिटी मीट ऑफ करने के बाद। बैंक विल रिजॉर्ट टू रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इट्स ड्यूज एज लास्ट रिजॉर्ट एंड नॉट विद इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग द बोरर ऑफ द प्रॉपर्टी। Accordingly, bank will be willing to consider handing over possession of property to the borrower anytime after repossession and before concluding sale transaction of the property, provided the bank dues are clear in full within the time frame specified by the bank. तो जब आपने repossession create किया, वो टाइम से लेके सेल करने तक, मतलब एक टाइम पीरियड आपको अलाउड होएगा ना, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप डेट पे कर दो। आपने डेट पे कर दिया, जितना भी डेट बनता था आपने पे कर दिया, आपको सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी, ठीक है। If satisfied with the genuineness of the borrower's inability to pay the loan installment as per the schedule which resulted in a repossession of security, bank may at its discretion consider handing over the property आफ्टर रिसीविंग द इंस्टॉलमेंट इन एरियर। तो अगर जेन्युइन रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ पेमेंट में एंड आपने रीपोसेशन क्रिएट की सिक्योरिटी के ऊपर, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ द बैंक कि अगर उन्होंने वापस करनी है वो सिक्योरिटी वो कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग देयर इंस्टॉलमेंट, जो भी ड्यू इंस्टॉलमेंट है वो रिसीव करने के बाद। However, this would be subject to banks being convinced of the arrangement made by the borrower to ensure timely repayment of remaining installment in future. Definitely, अगर बैंक को ऐसा दिखेगा कि नहीं कि
जो भी इसका रेवेन्यू सोर्स है, ठीक है, कंटिन्यूटी बेसिस के ऊपर ये इंस्टॉलमेंट को मीट ऑफ कर लेगा, डेफिनेटली वो केस में ही रीपोजेशन जो है आपने क्रिएट की सिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी वापस करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिकवरी एजेंट। अभी आपने डेट रिकवर करना है, सो विद द हेल्प ऑफ रिकवरी एजेंट बैंक विल बी एबल टू रिकवर देयर डेट्स। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स अप्रोच to recovery of loan is different from the strategies adopted by private sector bank and foreign bank. While public sector bank administer recovery management through their own staff in case of retail loan, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक आउटसोर्स देयर रिकवरी प्रोसेस, मतलब थर्ड पार्टी सर्विसेज यहाँ पे ली जाती हैं प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक की तरफ से, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ देयर रिटेल लोन। The method adopted by these recovery agent exceed the normal recovery route and went to the extent of coercion, threat, forced recovery of asset finance. मतलब आपने थर्ड पार्टी सर्विसेज ली हैं, डेफिनेटली आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आपने बाय हुक एंड क्रूक डेट रिकवर करके देना है। तो वन लेवल अबव जाके भी ये क्या है, डेट रिकवर करके देते हैं बैंक्स को। This was more applicable for unsecured overdue in credit card, receivable and personal loan. Suicide by borrower due to unethical recovery practice followed by some bank resulted in a regulatory intervention, and Reserve Bank of India came out with guideline prescribing the procedure और कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिकवरी एजेंट। हमने ऊपर अभी डिस्कस किया ना, बाय हुक एंड क्रूक उन्होंने डेट रिकवर करके देना है, ठीक है। डेफिनेटली दैट विल बी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर द बोरर एंड इसका अल्टीमेट आउटकम या रिजल्ट बेसिकली क्या देखने को मिल रहा था, सुसाइड बाय द बोरर्स, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सेट किए गए कि एज अ रिकवरी एजेंट आपने ये मीन्स ऑप्ट करने हैं या इस तरीके से आपने डील करना है जब भी आपने डेट रिकवर करना है, ठीक है। तो क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं जो गाइडलाइंस इशू की गई रिजर्व बैंक के द्वारा, अभी उसको डिस्कस करते हैं फॉर रिकवरी एजेंट्स। तो आरबीआई गाइडलाइन फॉर रिकवरी एजेंट, आरबीआई फेल्ट दैट a need has arisen to review the policy, practice and procedure involved in the engagement of recovery agents by banks in India. Reserve Bank issued draft guideline. जब उनको लगा कि इसके ये कंटेक्स्ट में ज़रूरी है तो उन्होंने गाइडलाइंस इशू की, which were placed on their website for comments of all concern based on the feedback received from, ठीक है, मतलब सीधा ही इम्प्लीमेंट नहीं किया ये चीज़ को, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी कंसर्न पीपल हैं, ठीक है, उनका जो फीडबैक आया, टेक इनटू कंसीडरेशन दैट थिंग, फिर गाइडलाइंस इशू की गई यहाँ पे, ठीक है, फिर चीजें डिसाइड की गई कि किस तरीके से आपने डील करना है, मतलब रिकवरी एजेंट्स ने डील करना है। अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैंक्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, द ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैव बीन suitably revised and guideline finalized and implemented by RBI are as follows. Take into consideration the whole perspective, point of view, feedback, ये सारी चीज़ों के बाद क्या गाइडलाइंस इशू की गई बैंक की तरफ से। सबसे पहले एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी ऑफिसर, मतलब जब भी आपने अपॉइंट करना है रिकवरी ऑफिसर को, क्या प्रोसेस, क्या चीज़ें, नॉर्म्स कौन कौन सी हैं जिनके साथ आपने डील करना है, सबसे पहले उसके बारे में, ठीक है। तो ये कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जितना अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उसके रिलेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो टॉपिक है, कहाँ पे थे हम, आरबीआई की जो गाइडलाइन है, इससे हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। साइलेंट फीचर क्या है, गाइडलाइन जो इशू की गई आरबीआई के द्वारा। अभी तक हमने जितना भी चैप्टर रीड आउट किया है इन रिलेशन टू दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर अभी बहुत पढ़ा है। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। Default in repayment in credit card and personal loan segment is mainly due to genuine default due to reason beyond the borrower's control, willful default where the default is intentional, both the above, none of the above.
तो डिफॉल्ट की अगर बात करूं, इन केस ऑफ पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड जेन्युइन डिफॉल्ट भी हो सकता है, विलफुल डिफॉल्ट भी हो सकता है, दोनों कैटेगरी के हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दिस इज ऑप्शन सी. सभी ने करेक्ट आंसर दिया, दैट इट्स ऑप्शन सी. ठीक है. देन नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन थ्रू लोक अदालत कैन बी रिजॉर्टेड टू बाय बैंक. अच्छा, ये मैंने करवाया नहीं आपको, लोक अदालत वाला अभी तक कॉन्सेप्ट किया नहीं है, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ये क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं. द टर्म्स एंड कंडीशन, और नेक्स्ट के ऊपर आते हैं. द टर्म्स एंड कंडीशन, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. द टर्म्स एंड कंडीशन for repossession as per the recovery policy should contain the following provision: notice period before taking possession, circumstances under which the notice period can be waived, the procedure for taking possession of the security, a provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before the sale and auction of property. Option E is all the above. तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपने फॉलो करनी है जब भी रीपोजेशन क्रिएट करना है सिक्योरिटी का अकॉर्डिंग टू रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक? नोटिस देना है ना, ये चीज है, नोटिस देना है आपने. सर्कमस्टांसेस अंडर विच नोटिस पीरियड कैन बी वेव, आप इसके बारे में बताना है. प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी, प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनल चांस to be given to the borrower for repayment of loan before sale and auction of the property. So what is the correct answer for this question? करेक्ट आंसर बताइएगा. इट्स ऑप्शन ई. अच्छा, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करना दोबारा, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करना दोबारा, फिर आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन थर्ड के लिए. क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रीपोजेशन एज पर द रिकवरी पॉलिसी शुड कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन. टर्म्स एंड कंडीशन में बेसिकली क्या प्रोविजन होनी चाहिए, जो भी आप जब भी आपने रीपोजेशन क्रिएट करना है उसमें आपको क्या लग रहा है कि हाँ कि ये प्रोविजन तो होएगी ये पॉलिसी में, रीपोजेशन के रिलेशन में ये प्रोविजन तो होएगी. नोटिस पीरियड फॉर टेकिंग पोजेशन, इट इज द रिक्वायरमेंट कि आपने पहले नोटिस पीरियड इशू करना है. इट्स अबाउट द प्रोविजन दैट शुड कंटेन इन द रिकवरी पॉलिसी इन रिलेशन टू रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी. अभी सोचो, अभी देखो कौन सा आपको ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. सो अभी करेक्ट आंसर आया मेरे पास, नितेश सर ने, रवि कुमार सर ने एंड अनिल सर ने अभी करेक्ट आंसर दिया है, दैट इट्स ऑप्शन डी. तो प्रोविजन होनी चाहिए इन रिलेशन टू व्हाट, इन रिलेशन टू फाइनल चांस टू बी गिवन टू द बोरर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन बिफोर द सेल एंड ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. ये चीज मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रोविजन होनी चाहिए. एक आपने उनको अपॉर्चुनिटी देनी है कि भाई ये आपका डेट बनता है, आप इसको पे करके आप वापस जो है अपनी सिक्योरिटी, उसकी पोजेशन ले सकते हो उसकी सिक्योरिटी की. तो ये पोजीशन होनी चाहिए इन द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रीपोजेशन ऑफ सिक्योरिटी. गेटिंग माई पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि फर्स्ट गो में सभी ने ऑप्शन ई बोला था. अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, देन डेफिनेटली आप बोलोगे कि सारे ही क्या हैं, करेक्ट ऑप्शन लग रही है आपको, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल. ठीक है कि हाँ कि ये चीज हो सकती है. लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे देन डेफिनेटली आई होप सो अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे कि व्हाई आई एम सेइंग दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. किसी को कोई डाउट तो नहीं ना ये चीज के रिलेशन में? इट्स अबाउट द प्रोविजन, तो ये प्रोविजन मस्ट है कि ये होनी ही चाहिए. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. रेस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो है इन रिलेशन टू द टॉपिक, क्या टॉपिक था हमारा, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन. ठीक है. तो इसी के साथ जो आज का सेशन है उसे करती हूँ वाइंड अप. सेशन वाइंड अप करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट टुडेज ऑफर